नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी आई मुख्य सेवक राजे। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 5वें कन्वेंशन का किया आगाज। गोगुंदा के मादड़ी गांव में 3 दिनों में 4 मौतों से गरमाया माहौल। प्रशासन ने भेजी चिकित्सा टीमें। संध्या के पैर में लगा कांटा। पुरोहित की मादड़ी में हुई एपिसोड की शूटिंग। निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर शुरू। 8 दिन होंगे ऑपरेशन और उपचार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सेवक के लेक सिटी में आने की। एक दिवसीय प्रवास पर उदयपुर आई प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने रविवार को इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 5वें कन्वेंशन का आगाज किया। इस मौके पर प्रदेश की ऐतिहासिक विरासतों को संजोने के साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं तलाशने पर चर्चा की गई। सिटी पैलेस के दरबार हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए मुख्य सेवक राजे ने कहा कि प्रदेश में हेरिटेज संपदाओं के पर्यटन के लिहाज से उपयोग की महती आवश्यकता है और अभी भी प्रदेश की सभी ऐतिहासिक विरासतों का बेहतर उपयोग नहीं हो पाया है। प्रदेश में टूरिज्म विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्य सेवक ने युवा पीढ़ी से इस दिशा में आगे आने और इन संपदाओं के संरक्षण करने की बात कही। मुख्य सेवक राजे ने कहा कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों और त्योहारों के पर्यटन लिहाज से और रोचक आयोजन की आवश्यकता है। मुख्य सेवक ने इस दौरान प्रदेश के पर्यटन उद्योग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए होटल्स उद्यमियों के विचारों को पर्यटन नीति में समाहित करने की बात कही। इससे पहले वसुंधरा राजे ने सिटी पैलेस के खुश महल में हेरिटेज उत्पादों को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व जोधपुर राजघराने के सदस्य गज सिंह, उदयपुर पूर्व राजघराने के सदस्य अरविंद सिंह, प्रदेश की पीएचडी सेवक किरण माहेश्वरी सहित कई लोग मौजूद रहे। Office bearers of IHHA, distinguished invitees, members of the press, particularly the Governor, the Honorable Minister for Tourism, will take just one point which the Governor made yesterday. He said that by living in it, that monument also lives with us. But we have to be able to break through this traditional idea of wonderful old building looked after by an even older human. And somehow, when that falls apart, which is bound to fall apart, then that is the time when people notice we should do something about it. The time has come for all of us to be able to make that pitch. Wherever we go, we need to be able to talk about it. Today that we are restoring monuments, I am happy to say the Lal Mahal, the Safed Mahal in Bear, near Kama, have been taken care of by, this is now Lama, and I can actually take his name with it, our name with it, and that makes me very proud. If you will look and see, JKK has completely been refurbished in that sense. We have new dynamic unit over there. Great programs are taking place. New things are happening there. The library is taken off. The art galleries there have taken off. New programs are happening there. And it's become a space where people now come to enjoy. I mean, they all look it up, find out what their programs are, and attend it. And I'm really happy for that. Bikaner House in Delhi is now a rocking place. It is taken off like never before, and I remember when people were ordering it because it requires a little more investment. But the other one was talking to Sri Maharaj and Bharti. Both said, if you can get people to buy into it, you don't need people to come with pots of money. So yes, it's a new concept. I'm bothered how that place in Nagore has come up.
when I talk about it, and how can you live in this old fort? You can't, it's a heritage building. I said, why don't you just go to Nagaur? I don't know how many people have said to Nagaur to understand the spirit. Which I'll have a look at those who see what we can do about it. And I'm very happy to say that Maharashtra asked for a partnership. I personally think it's a very good idea for us to work towards making this kind of partnership happen. And we'll be working towards that also. Again, it's been a great pleasure to have this meeting with all of you here today. And as I said, ideas are always welcome because we have diverse properties and diverse plans for these properties. But in the end, we all go towards making the tourism setup of Rajasthan stronger. So if there are things which actually bring these together, if there are ideas, I'd really be very happy to hear it. And उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में मादड़ी गांव में बीते 3 दिनों में हुई 4 मौतों से पूरे प्रशासनिक और चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों का कहना है कि घर में राशन नहीं होने के चलते एक ही परिवार की एक किशोरी और 3 बच्चों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतकों के परिवार को पिछले 2 महीनों से राशन नहीं मिल रहा था, इस वजह से लोग भूख से मर गए। जबकि चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इन मौतों के पीछे नाले का दूषित पानी है, जिसके सेवन के कारण ये बच्चे बीमार हुए थे। फिलहाल गांव में हुई इन 4 मौतों से हिले प्रशासन ने गांव में चिकित्सा टीमें भेज दी हैं। सामने आया है कि गोगुंदा इलाके में हुई तेज बारिश के चलते इस क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर हैं। इस वजह से मादड़ी गांव का यह इलाका पूरी तरह से टापू बन चुका था। इस दौरान मृतक और उसके पूरे परिवार के लोगों का संपर्क पिछले कई समय से टूटा हुआ था। ऐसे में पानी से घिरे होने के चलते मृतकों तक न तो राशन पहुंचा और न ही पीने का स्वच्छ पानी। इस दौरान इन लोगों ने नाले का दूषित पानी पीकर गुजारा किया, जिससे लोग बीमार पड़ गए। पानी से घिरे होने के कारण लोगों तक समय पर राशन नहीं पहुंच सका। साथ ही नदी का पुल टूटने से बीमार अवस्था में अस्पताल जाने का भी कोई रास्ता नहीं मिला, जिससे इनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। हालांकि इस घटना के जिम्मेदार अधिकारी इन मौतों की असली वजह नाले का दूषित पानी मान रहे हैं। मारे पानी कैस नहीं मिले, खावा पीवा तो कैस नहीं, उड़वे पीवे कैस नहीं। डॉक्टर साहब कोई अटे आया नहीं, नदी में आड़ी पड़े साधन मिले नहीं। 3 किलोमीटर मारे तो कुछ नहीं, मोटो बसर कोई नहीं आया, खावा पीवा कुछ नहीं मिले, कोई पैसा कुछ नहीं मिले। 3 से हम बीमार, ये 10 दिन हो गया बीमार पड़ गए ने। खावा पीवा कहीं मंगरा में दिया में कुछ नहीं, और खावा पीवा कुछ नहीं, आवा जावा जहाँ ये घटना हुई है, ये एरिया हमारे पंचायत मुख्यालय से करीबन 3 किलोमीटर पड़ता है और बीच में 2 नदियाँ आती हैं। एक तो बड़ी नदी है वाकल नदी और एक है छोटी नदी जो नाथ्याथल है। इन दोनों नदियों का अभी हेवी भारी बरसात होने से इनका दोनों रास्ते कट गए और मीनवाइल बच्चे बीमार हो गए थे। तो रास्ते कट जाने से बच्चों को समय पर एक तो इलाज नहीं हो पाया, टाइम पर दवा नहीं हो पाई और ये लोग बेचारे गरीब हैं, इनके पास पैसे की कमी थी, पैसा था नहीं और मजदूरी करके अपना भोजन करते हैं, व्यवस्था बढ़ाते हैं, सुबह का काम शाम को और शाम का सुबह। इस स्थिति में इनके पास इनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जिससे लोग और कोई व्यवस्थाओं से बच्चों को दवाई करवाते। तो एक तो समय पर इनको ऐड नहीं मिली, दूसरा रास्ते कट जाने से लोग मजदूरी भी नहीं कर पाए, मजदूरी करने में नहीं जा पाए इधर उधर कहीं भी। तो स्थिति नाजुक होती गई और एक करके बच्चे मरते गए और करके 3 बच्चे एक साथ मरे और एक बच्चा एक बाद में मरा, क्योंकि 4 बच्चे इनके मर चुके और उसको एक बच्चा अभी भी एक बच्चा अभी उदयपुर एडमिट है, आईसीयू में एडमिट करवाया, वो अभी 2 दिन पहले लेके गए हैं यहाँ से आकर के। और एक बच्चा अभी एडमिट है। आज यहाँ से अधिकारी लोग आए हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब वगैरह आए, तो ये इनको लेकर के अभी डॉक्टर साहब भी साथ में हैं और अभी ले जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इसको एडमिट करवाएंगे इसको। और खाने पीने के लिए इनके पास वाकई में निश्चित रूप से इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तो मजदूरी नहीं मिली और एक आर्थिक स्थिति वैसे तंग है ही, इनकी स्थिति कमजोर थी, मजदूरी करके और अपना व्यवस्था बढ़ाते थे तो हो नहीं पाया और न सरकार से इनको कोई अभी ऊपर से कोई एड तत्काल होनी चाहिए थी, वो एड नहीं मिल पाई। 4 बच्चे एक साथ मर जाना और उनके परिवार टूट गया एक तरह से, इसलिए हम चाहते हैं कि इनको सहायता मिले।
प्रॉपर सहायता मिले, अगर थोड़ा तत्काल सहायता मिलेगी तो इनका परिवार उबर पाएगा और अपना संभल पाएगा। हम ये चाह रहे हैं। मतलब मुझे पता चला और मैं यहाँ पर 2 दिन तक लगातार दौरा कर रहा हूँ और यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो बरसाती नाला है उस नाले के पार कुछ परिवार रह रहे हैं। तो उसमें से ये जो 2 परिवार ये हैं जो खम्मा और मोहन के, एक के घर में 3 डेथ हो गई और एक के घर में डेथ हो गई है। तो यहाँ पे एक तो बरसाती नाले के दूषित जल के सेवन से पेट की खराबी हुई और जो फूड पॉइजनिंग की बात हमारे जो चिकित्सा अधिकारी वो कह रहे हैं और उससे उल्टी दस्त की समस्या हुई और ये मौसमी बीमारी के प्रकोप से ये बता रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पानी की और व्यवस्था क्या हो सकती है, उसके हिसाब से हम फिर और दूसरी और जांच करवा रहे हैं। ठीक है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बिगेस्ट मल्टी ब्रांड स्टोर ऑफ उदयपुर, राजा साहेब एक्सेल, लेडीज, जेंट्स and kids all garments. Fort 11 Bhopalpura opposite Gattani Hospital, Udaipur. Call at 0294 2411 066. रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कराने वाले उदयपुर संभाग के सबसे बेहतरीन संस्थान GKS एकेडमी की स्थापना पूजनीय माता श्रीमती गुलाब कुंवर जी की पुण्य स्मृति में नवंबर 2013 में की गई। सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी मेंबर्स के अनोखे टीचिंग मेथड ने इसे राजस्थान के स्टूडेंट्स की पहली पसंद बना दिया। 2nd ग्रेड शिक्षक, 3rd ग्रेड शिक्षक, RAS, SI, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, LDC, बैंक PO, SSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रिक्स के आधार पर कोचिंग करवाई जाती है। शानदार वाईफाई कैंपस में स्टूडेंट्स के टेस्ट OMR के माध्यम से लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर ज्ञान के खजाने के रूप में लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर विशेष क्लासें चलाई जाती हैं। GKS एकेडमी स्वागत वाटिका के सामने, सेक्टर 4 उदयपुर। कॉल 7733 00 9444 850 40 68122।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टार प्लस का सुपरहिट धारावाहिक दिया और बाती अब जल्दी खत्म होने वाला है। इस कड़ी में उदयपुर में शूटिंग चल रही है। रविवार को पुरोहितों की मादरी में एपिसोड की शूटिंग की गई। दिन भर चले शूट में शरीर पर बम बांधकर जा रही संध्या के पैर में कांटा चुभ जाने का दृश्य फिल्माया गया। इससे पहले शनिवार को जोजी की पुलिया जगदीश चौक गणगौर घाट पर इस सीरियल के महत्वपूर्ण अंशों की शूटिंग की गई थी। इस अवसर पर बड़ी तादाद में लोग इस धारावाहिक के अहम किरदार सूरज और संध्या राठी के एक झलक पाने को बेताब दिखे। आदर्श बहू के रूप में इस धारावाहिक के माध्यम से छोटे पर्दे पर अपनी अनूठी छाप छोड़ने वाली संध्या ने झीलों की नगरी की खूब तारीफ की। सविना स्थित एमपी कॉलोनी में बनाए जाने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास रविवार को किया गया। कॉलोनी के अंदर स्थित पार्क में बनने वाले इस भवन के लिए भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष पारस सिंघवी सहित कई शहरवासी मौजूद रहे। यहां पर सामुदायिक भवन बनने से क्षेत्रवासियों को विभिन्न तरह के आयोजन करने के लिए रियायती दरों पर भवन मिल जाएगा। नगर निगम और आयुर्वेद विभाग की ओर से रविवार को निःशुल्क विशाल आयुर्वेद चिकित्सा शिविर शुरू हुआ। 8 दिन तक चलने वाले इस शिविर में विभिन्न रोगों के ऑपरेशन आयुर्वेद विधि से किए जाएंगे। शिवाजी नगर स्थित मीरा सामुदायिक भवन में हुए उद्घाटन समारोह में गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया, आयुर्वेद निदेशक स्नेहलता पंवार, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी सहित कई लोग मौजूद थे। इस शिविर में पाइल्स, भगंदर, फिशर का क्षारसूत्र विधि से ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा श्वास, दमा, खांसी, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, गठिया आदि रोगों का परामर्श और उपचार किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के रोगों का भी आयुर्वेद विधि से उपचार किया जाएगा। शिविर के दौरान मरीजों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए काढ़े का वितरण भी होगा। यहाँ पर भर्ती किए जाने वाले मरीजों के ठहरने की व्यवस्था नगर निगम की ओर से की जाती है उसको मूल से जड़ से मिटाने के लिए। आज एलोपैथी भी लेता, आदमी मजदूरी में लेता होगा, जैसे भी लेता होगा, और इसी क्रम में इसलिए यहाँ तक भी नहीं आना पड़े, इससे पहले हम योग करें, व्यायाम करें। परम सम्माननीय आदरणीय श्रीमान गुलाबचंद कटारिया साहब, चिकित्सक, कंपाउंडर, परिचालक स्टाफ लगा है और जो लोग गणमान्य नागरिकगण, मेरा सौभाग्य है कि आज सारा खर्चा उठाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार विभाग की तरफ से व्यक्त। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। लेक सिटी आई मुख्य सेवक राजे। इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 5वें कन्वेंशन का किया आगाज। गोगुंदा के मादड़ी गांव में 3 दिनों में 4 मौतों से गरमाया माहौल। प्रशासन ने भेजी चिकित्सा टीमें। संध्या के पैर में लगा कांटा। पुरोहित की मादरी में हुई एपिसोड की शूटिंग। निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर शुरू। 8 दिन होंगे ऑपरेशन और उपचार। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।